Hello dear modern stars, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your history civics teacher Shweta Tiwari. So student, take your history civics book and open chapter 2. Chapter name is Vedic period. Okay, chapter name is the Vedic period. Okay, students, by this video we will write structured questions and answer. It means part second of this chapter. Okay, because part 1 you will solve yourself. Okay, because I have explained all your chapter 2. ओके, मैंने कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इसकी जो शॉर्ट 1 वर्ड 2 वर्ड्स के आंसर हैं, इनको आप सेल्फ सॉल्व करेंगे. और जो आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, इट मीन जो स्ट्रक्चर्ड ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, वो मैं सॉल्व करवाऊंगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1. एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेक योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग. ओके, firstly students, you will write question number 1. The Indo-Aryans are said to have migrated to India, full stop. With reference to this, write briefly on the following. Okay, and you will write also A. It means आपको क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद 3 ऑप्शन दिए गए. इन क्वेश्चंस को भी स्ट्रक्चर्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन है. इट मीन्स रिलेटेड आपके इसी से हैं. उसके बाद 1 बाई 1 लाइक हेडिंग की तरह आप लिखेंगे. तो आप ए फर्स्ट नोट डाउन द मोस्ट प्रोबेबल प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. देयर मीन्स इंडो आर्यंस. ओके, इट मीन्स प्रोबेबल प्लेस कौन सा है, सबसे ज़्यादा संभावित प्लेस कौन सा है उनकी ओरिजिन का, उत्पत्ति का. इट मीन्स उनके मूल निवास. इट मीन्स वो कहाँ से थे, इंडो आर्यंस जो है वो कहाँ से थे. Okay, so note down answer of this question. It is generally believed that the Indo-Aryans were members and descendants of groups living around the Caspian Sea in Central Asia. It means ये कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सी के आसपास वो इंडो आर्यंस वहाँ के मेंबर से वहाँ से आए थे. और जब इन्होंने माइग्रेट किया वहाँ से, तो ये वर्ल्ड के कहीं डिफरेंट प्लेस पर गए थे. सो यू विल राइट इट इज़ जनरली बिलीव दैट द इंडो आर्यंस वर मेंबर्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रुप्स लिविंग अराउंड द कैस्पियन सी इन सेंट्रल एशिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बी. फर्स्ट का बी, द प्लेस ऑफ देयर अर्ली सेटलमेंट इन इंडिया. इट मीन्स उस प्लेस का, उस स्थान का आपको नाम लिखना है जहाँ पर जिनका अर्ली सेटलमेंट हुआ था भारत में, जहाँ सबसे पहले उन्होंने सेटल किया था खुद को. ओके, सो आंसर इज ओके 1 मिनट. स्टार्टिंग जो अर्ली सेटल्ड हुए थे. ओके, नोट डाउन द ग्रुप ऑफ आर्यंस that came to India was given the name Indo-Aryans. Okay, it means जो आर्यन ग्रुप थे that came to India was given the name Indo-Aryans. लिए उनका Indo-Aryans कहा गया. they are believed to have started settling in the Indo-Gangetic plains from around 1500 BCE onwards. Listen again and write. The group of Aryans that came to India was given the name Indo-Aryans, full stop. They are believed to have started settling in the Indo-Gangetic plains from around 1500 BCE onwards. Full stop. Next question number C. Okay, question number C write करिए. What is question number C? Students, page number 17 पेज नंबर पर ये जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक पर. द एरिया वेयर द इंडो आर्यंस सेटल्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. ओके, इट मीन्स वो एरिया के बारे में बी क्वेश्चन में आपने लिखा अर्ली सेटलमेंट कहाँ हुआ था. इसमें पूछा गया है कि इंडो आर्यंस ने लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक जो अर्ली सेटलमेंट था वो अर्ली वैदिक पीरियड में था. इसमें लेटर वैदिक पीरियड के सेटलमेंट के बारे में पूछा गया है. सो आंसर इज
seems that Ganga Yamuna doab constituted the core region during the later Vedic times. Okay, it seems that the Ganga Yamuna doab constituted the core region during the later Vedic times. Full stop. Further regions to the east such as Kosala, Kashi, Videha and Magad are also referred to in the later Vedic text. Okay, later Vedic text में इसका प्रमाण मिलता है कि later Vedic period में उन्होंने खुद को कहाँ कहाँ सेटल किया था. Listen again. It seems that the Ganga Yamuna doab constituted the core region during the later Vedic times. Full stop. Further regions to the east such as Kosala, Kashi, Videha and Magad are also referred to in the later Vedic text. Okay. Next question. Okay. Historians have reconstructed the social and economic changes that took place in North India during 1500 to 500 BC on the basis of some sources with reference to this write about. Okay, इनके बारे में लिखना है, sources के बारे में. Okay, तो 1500 से लेकर के 500 के बीच की बात होती, तो 1500 से लेकर के 1000 तक आपका अर्ली वैदिक पीरियड था. 1000 जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, और 1000 से लेकर के 500 के बीच का जो भी पीरियड था वो लेटर वैदिक पीरियड था. ओके, सो आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद आप 2A नोट करेंगे लाइक हेडिंग. ओके, सोर्सेज फॉर द पीरियड ड्यूरिंग 1500 to 1000 BCE. इट मीन्स 1500-1000 के दौरान जो है उस टाइम पे जो भी सोर्सेस मिले थे वो क्या क्या थे. लिटरेरी सोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पर. ओके, अर्ली वैदिक की बात हो रही है. अर्ली वैदिक लिटरेचर नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2A का आंसर लिखिए. अर्ली वैदिक लिटरेचर pertains to the period during 1500 to 1000 BCE and consists of the संहिता. जो संहिता लिखा हुआ है, तो इसको जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं संहिता ऑफ द ऋग्वेदा. फुल स्टॉप. द ऋग्वेदा, इसको ऋग्वेद कहते हैं. ओके, ऋग्वेद इज परहैप्स द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड. ओके, इट मीन्स उस टाइम पे जो सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज थे, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद. ओके, उससे जो है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पता लगता है, और ये उसका सोर्सेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट राइटिंग 2. क्वेश्चन नंबर C, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. ओके, क्वेश्चन नंबर C क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. ओके, यस. तो उसमें आपको क्या लिखना है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या थे 1500 से लेकर के 500 के बीच में, कौन कौन से सोर्सेस थे. सो ओके, नोट डाउन. फर्स्ट हेडिंग. Okay, it means these are archaeological facts, iron artifacts and pottery. Okay, so first note down heading of 2C, iron artifacts. The discovery of iron implements such as hammers, arrowheads, spearheads, saws, etc. belonging to the Vedic period indicate that people had started using iron during this period. Full stop. Listen again. Iron artifacts. It means iron से जो कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, like hammers, arrowheads, spearheads, saws, तीर वगैरह. Okay, belonging to the Vedic period indicate that people had started
यूजिंग आयरन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस चीज़ से इसका प्रमाण है कि उस टाइम पर लोग जो है उस टाइम वैदिक पीरियड के जो इंडो आर्यंस थे वो लोहे से चीज़ों को बनाया करते थे। ओके, लिसन अगेन। आयरन आर्टिफैक्ट्स, द डिस्कवरी ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स सच एज हैमर्स, एरोहेड्स, spearheads, saws, belonging to the Vedic period indicate that people had started using iron during this period. Next heading, pottery. ओके, कुछ बर्तन वगैरह जो भी बनाए जाते थे। पॉटरी में लिखिए पेंटेड ग्रे वेयर, शॉर्ट में इसको PGW कहते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर इज अ वेरी फाइन स्मूथ एंड even colored pottery. Full stop. It was probably tableware used by well-to-do people. Full stop. It consisted mostly of open-mouthed bowls and dishes. Full stop. Okay. So students, you have written question number 1 and question number 2 of chapter 2. Okay, it's enough for today video. Next day I will tell you the answer of third question of this chapter. It means Vedic period. Okay, so student, take care yourself and bye bye.